disaccharides, the next classification of this. ठीक है, अब डाई मने 2. दैट मीन्स अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन करेंगी तो हमारे पास बनेगा डाइसेकेराइड्स. एंड देयर आर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स, लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोस. Physiologically, these 3 disaccharides are very important. Now we are going to take these 3 disaccharides one by one. ठीक है? Combination of 2 monosaccharides and obviously glycosidic linkage will be there. Lactose, maltose, sucrose. Isomaltose and trehalose are there, but the physiologically important ones are these 3. Now, what are the structural differences and what are the important features of this? Let's see. First of all, lactose. All of us know that lactose is the principal, you can say, sugar present in milk. That is why it is also known as milk sugar. How it is produced? It is produced when one molecule of glucose combines with one molecule of galactose, and both these are in beta form. That means beta D glucose and beta D galactose will form lactose. Very important. It contains one molecule of galactose, one molecule of glucose linked by beta 1,4 glycosidic linkage. And it is a reducing disaccharide, means it is a reducing sugar. And the most important feature is it is the source of carbohydrates in breastfed infants. Obviously, because this is the predominant milk sugar present, right? And it is hydrolyzed into galactose and glucose by the enzyme lactase. Now remember just one thing in your mind, that whatever is being produced in the body, it has to be reduced also, or it has to be degraded also, broken down. And how it is broken down? It is broken down with the help of enzymes. जैसे if A plus B are forming C, this C will be broken down into A plus B. And if any of the enzyme is absent, if forward enzyme is absent, this will accumulate. मतलब अगर ये वाला enzyme जो C को बनाने में नहीं है present, तो A और B का concentration बढ़ जाता है. और अगर C को A और B में convert करने वाला enzyme absent है, तो C का concentration बढ़ जाएगा. और इनका अगर concentration बढ़ जाएगा, तो they will lead to different disorders. ठीक है? सो अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि लैक्टोस दिखता कैसा है. अब देखो, सी क्या है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है और लिंकेज है इसमें बीटा 1,4. इसका मतलब आई कैन से दैट लैक्टोस इज बीइंग कन्वर्टेड by giving out one water molecule to form lactose. Glucose and galactose combining to form this lactose. अब or you can say कि lactose when it splits up, or I'll write the reaction like this to make it more simple for you. Glucose plus galactose are forming lactose. If lactose has to be converted into this, the enzyme will be lactase. अब now see, if this lactase enzyme is absent, what will happen? This lactose won't be broken down into glucose and galactose. Simple है. अगर वो एंजाइम जो उसको ब्रेक कर रहा है वो ही एब्सेंट है तो वो ब्रेक नहीं होगा. इसका मतलब क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा इन्फेंट्स में, और एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बी इनटॉलरेंट टू लैक्टोज, और उसको हम बोलते हैं
लैक्टोज इनटॉलरेंस। मतलब क्या है? इनटॉलरेंस, लैक्टोज कैन नॉट बी टॉलरेटेड। क्यों नहीं टॉलरेट हो रहा है? क्योंकि जो एंजाइम है उसको ब्रेक करने का वो एब्सेंट है। ठीक है, लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस, राइट। सो ये है हमारे पास लैक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माल्टोस। अब माल्टोस बनता है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लिंकेज इसमें होती है अल्फा 1,4 और ये बनाता है माल्टोस। और वो एंजाइम जो माल्टोस को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, दैट एंजाइम इज माल्टेस। ठीक है, सो माल्टोस इज सिंपल अल्फा 1,4 ग्लूकोज ग्लूकोज फॉर्मिंग दिस, राइट। This is the structure. You can see that glucose and glucose. So glucose glucose combine to form maltose. And then we come over to sucrose. Now see, maltose is glucose plus glucose, lactose is glucose plus galactose, sucrose is glucose plus fructose, and sucrose is the common table sugar which we use. It is the common table sugar, and obviously it has a high calorific value. It contributes to some calories in the diet. Ab the basic difference between sucrose and other sugars, other disaccharides is this is the only non-reducing disaccharide. सिर्फ यही है जो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है अगर हम कंपेयर करें दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो अब ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि इसमें रिएक्शन जो है ये है बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप्स। रिएक्शन ही फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में है। मतलब क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अल्फा 1,2 लिंकेज इज देयर। अब देखो ग्लूकोज में 1 इज द एनोमेरिक कार्बन एटम, तो फंक्शनल ग्रुप गया। फ्रक्टोज में सेकेंड पोजीशन पे एनोमेरिक कार्बन एटम या यू कैन से फंक्शनल ग्रुप इज देयर, तो सेकेंड ग्रुप गया। इसका मतलब क्या है? इसमें नो फ्री फंक्शनल ग्रुप इज देयर, एंड इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये जो डिफरेंशिएट करता है सुक्रोज को फ्रॉम योर लैक्टोस, योर माल्टोस, योर ग्लूकोज, योर गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस। और फिर एक और चीज, इस सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। अब इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखने में इट अपीयर्स टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। देखने में ये लगता है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, पर बनती किससे है ये? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो अगर हम देखें तो फ्रक्टोज की लीवोरोटेटरी पावर इज -91 डिग्रीज और ग्लूकोज की +52.7 डिग्रीज। तो इसकी इतनी ज्यादा होती है कि ये ओवरवे कर जाती है। मतलब ये है कि देखने में लगता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट फ्रक्टोज की जो लीवोरोटेटरी पावर है वो उसको ओवरवे कर जाती है। वो इतना ओवरवे कर जाती है कि उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।
इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ दिस इज इन्वर्टेस। इन्वर्टेस इज द एंजाइम जो क्या करेगा, जो इस इन्वर्ट शुगर को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग वन। ठीक है, फिर उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट, एक है आइसोमाल्टोस और एक है ट्रीहेलोस। बट अगर इनकी हम फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी इनमें प्रेजेंट क्या है, आइसोमाल्टोस में 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, और ये बनता कैसे है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन से। और ट्रीहेलोस में सिंपल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फा 1,1 ग्लूकोज, और ट्रीहेलोस भी नॉन रिड्यूसिंग है। और ईस्ट एंड फंजाई आर द सोर्स ऑफ ट्रीहेलोस। तो ये क्या है, ये है हमारे पास सारे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में अगर मुझे कंबाइन ही करना है तो 3 इंपॉर्टेंट हैं, सुक्रोस, माल्टोस एंड लैक्टोस। ठीक है, सुक्रोस बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, माल्टोस बनता है आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज से, और लैक्टोस आपका बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोस से। यहाँ पे अल्फा 1,2 लिंकेज होती है, यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज है, और यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज है। माल्टोस हैज अल्फा लिंकेज एंड लैक्टोस हैज बीटा लिंकेज। So these are the physiologically important disaccharides। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आइसोमाल्टोस और ट्रीहेलोस का। ये आइसोमाल्टोस है, आइसो माने ऐसे लिंक करते हैं, और ये है ट्रीहेलोस। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। फिर क्विकली हम जरा थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्या है। मोनोसैकेराइड जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है वो है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसका स्ट्रक्चर है ये CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। फिर एक और चीज, नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इज 2⁻n। n बनाता है आपका कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम, right? Glucose and fructose are linked as aldoketo isomers, and diastereomers are not the mirror images and differ in configuration of more than one asymmetric carbon atom. For example, D-mannose and D-galactose.